My father expired when I was only 16 years old. So after that I went to Kuwait when I was 18 years old. It was a very lot of struggle between 16 to 18 years old. उसके बाद हमने I worked there for 8 years and I would have continued working over there because I was managing the whole company. I was the right hand for my uncle over there. I started with them only 150 dinar salary, but when I left I was earning about 2000 dinar salary. 2000 dinars was almost 1.5 lakhs Indian rupees. So that was good enough for me. Saddam Hussein came in, so we had to all run away, leaving everything. My uncle's everything, material was stolen. So we came to Dubai. I worked with Year for one company for 1 year. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते एंड दैट्स हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी Danube started. We started with a brokerage initial because I didn't have the money, only 100,000 dirhams I had. So with that 100,000 dirhams, 20,000 dirhams का मैंने अपार्टमेंट रेंट पे लिया, जो ऑफिस होती है वो, घर रेंट पे लिया, देन कार एक लिया, अच्छी सी कार ली ताकि जाओ तो अच्छा लगना चाहिए कि नहीं इसके पास पैसे है, एंड लाइसेंस बनाया. तो उसके अंदर 60-65,000 dirhams चले गए एंड 30,000 dirhams टोटल बचे. तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि भाई 6 महीने हैं मेरे पास, 5,000 dirhams मेरा एक्सपेंसिस था महीने का. अगर 30,000 dirhams मेरे पास सेविंग्स पड़ी हुई है और 6 महीना ये चलेगा, और ये 6 महीना अगर काम चल पड़ा तो कंटिन्यू करेंगे, वरना 5-10 हज़ार dirham की नौकरी कोई भी दे देगा. There are 2,500 employees working for me. Out of the 2,500 employees, I think almost 1,700 to 1,800 people who are working in my company are Indian people working. Each of them has a family of 4, 1 wife and 2 children on an average. So I would say that 8,000 families are today, I wouldn't say surviving, but they are a part of Danube, and I consider them that because Danube has been created by me. So 8,000 families are living, including myself, because of Danube. So that's which I never thought, because I initially started with a salary of 150 dinars in Kuwait, and today my payout, monthly payout on the salary is almost 10 million dirhams per month. So that is a big consideration because so many Indians have got a job in Dubai. Of course, they are helping me to grow the company also, but at the same time, they are also, living their life because of working in Danube. बचपन हमारा इंडिया में गुजरा हुआ है. I come from a very middle class family where the dad had provided us the basics, I would say. Like basics मतलब मेरे पास स्कूटर थी, कार नहीं थी. कॉन्वेंट स्कूल था, लेकिन बस में जाता था. आई डिडंट हैव दैट मनी टू गो इन अ टैक्सी और ए कार. ट्यूशन नहीं थे, खुद ही पढ़ना था. तो उस सिचुएशन में हम बड़े हुए हैं. लेकिन जब वो सिचुएशन में होता है तो एक फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप होता है हमारा, वो बहुत अच्छा होता है. फॉर एग्जांपल मुझे हमेशा याद आता था कि अगर वहाँ पे कोई होली का प्रोग्राम होता है या दिवाली का प्रोग्राम होता है या ईद का प्रोग्राम होता है और क्रिसमस का प्रोग्राम होता है, तो इतना हम लोग उसको शौक से मना देते. पैसे नहीं थे जेब में, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से बिल्डिंग में जाना, लोगों से चंदे इकट्ठा करना, और उस सोसाइटी के अंदर, एंड आई लकीली फ्रॉम दैट टाइम ओनली आई हैड द लीडरशिप क्वालिटी. सो आई वाज the one I would say the initiator or the idea given where we used to make the program. अब सोसाइटी के अंदर हमने ये प्रोग्राम बनाना है और हम हर एक अंकल के पास जाएंगे, अंकल देखो ये प्रोग्राम बना रहे हैं और थोड़ा आप दे दीजिए जो आपकी कंट्रीब्यूशन होगी. तो उस कंट्रीब्यूशन से हम उसको फिर एक सोसाइटी में प्रोग्राम बनाते. तो कभी कभी अच्छे अच्छे दिन याद आते कि ऐसे दिन भी हमने गुजारे हैं. लाइक इस क्या इंडिया की याद आती, वो बचपन जो है गुजरा हमारा इंडिया में, वो बहुत अच्छी तरह से याद आता है. Yeah, like if you ask Sachin Tendulkar, if not cricket, what he would do? He would not, because from the beginning, I believe I have been born as a businessman. If it was not building material, I would have traded in garments, I would have traded into something else, but definitely trading. Why I am telling you this? Because, like I said, from the beginning, I was born in a very humble background in a middle class family. So when I used to go to school or college, my monthly salary, my monthly pocket money, which my dad was giving me, was only 15 rupees, which was 50 paisa दिन का.
दिस वॉज द कंडीशन, आई कांट अफोर्ड मोर देन दिस, तो 15 रुपये में तेरे को जो करना है कर रहा है. एंड ही पुट मी इन टू एन इंग्लिश स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, वेर ऑल द चिल्ड्रन वेर रिच इनफ, दे यूज्ड टू गेट 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ पॉकेट मनी, एंड मैं गरीब बेचारा 15 रुपये जाता था. तो आई टू ऑलवेज फील के यार ये क्या हो रहा है, 15 रुपये मेरे पास है, उसके पास सबके लिए है. सो आई शुड, तो डैडी को मैंने बोला कि यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू कैन नॉट गिव मी मोर, बट कैन आई डू सम बिजनेस. तुम क्या बिजनेस करोगे? तो मैंने कहा कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मुझे पैसे कमाने और आई वॉन्ट टू लीव द स्टैंडर्ड विद द अदर फ्रेंड्स आर डूइंग. तो उस जमाने भी मुझे याद है कि 12 ईयर्स 13 ईयर्स 14 ईयर्स के अंदर मैंने क्रैकर्स बेचे हैं. आई हैव सोल्ड, आई मीन आई टू गो टू मस्जिद बंदर, गेट द क्रैकर्स ऑन द होलसेल, कम टू द, वहाँ पे बाकड़ा लगा के दोस्त लोग को बोलता था क्रैकर्स खरीदो. उसके बावजूद, उसके अलावा मैंने बुक्स, छुट्टियों के टाइम पे आई टू गो टू अगेन होलसेल मार्केट, गेट दी जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं, अपने नोट बुक्स होते हैं, ये बुक्स लेकर आके हर एक घर में जाता था. क्या बुक्स खरीद रहे हो कहीं और से, मेरे से लो, वही प्राइस में दूंगा आपको. तो 10-15% उसमें निकल जाते थे मेरे. राखी बेची है मैंने, मैच बॉक्स बेचे है, किसी के घर में दूध भी दिया है मैंने सुबह जाके. तो एक बिजनेस हमेशा से इनबॉर्न ही था, और मैं समझता हूँ कि ये एक क्वालिटी है जो ऊपर वाले ने एक देन है, जो विच हैज़ बीन गिफ्टेड टू मी. एंड अगर मैं देन्यूब नहीं होता तो शायद लकड़ी नहीं बेचता या बिल्डिंग मटेरियल नहीं बेचता, तो शायद कपड़े बेचता या जूते बेचता, लेकिन धंधा बिजनेस जरूर. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, एक इनबॉर्न क्वालिटी आप में होनी चाहिए. जैसे मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल क्रिकेटर्स कितने लोग, अभी गावस्कर का बेटा है, ओके, ऑल तो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है, बट स्टिल मैं बोलूंगा गावस्कर का बेटा है, रोहन गावस्कर. उसको क्या ट्रेनिंग नहीं मिली होगी? बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली होगी. रोहन गावस्कर का बेटा, रोहन गावस्कर, जैसे सचिन तेंदुलकर का बेटा आएगा कल, जरूरी नहीं कि वो अच्छा क्रिकेटर बनेगा. तो जब तक कि वो इनबॉर्न गिफ्ट आप में नहीं होगा तब तक वो नहीं हो सकता है. दैट बिकॉज आई बिलीव दैट ऊपर वाले की देन है कि मुझे वो इनबॉर्न गिफ्ट मिला है एज ए बिजनेस मैन, वेयर अगर कोई भी बॉल मेरे सामने आती है, उस सिचुएशन को मैं किस तरह से संभालना, किस तरह से वो लेफ्ट में मारना है, राइट में मारना है, पीछे मारना है, आगे मारना है, या वो खाली प्लेट करना है, तो वो इनबॉर्न क्वालिटी है. इसके वजह से दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, लक ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज बहुत सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बैट्समैन सेंचुरी बनाते हैं बिकॉज उनकी 2 कैच छूट जाती है. तो मैं समझता हूँ मेरी 2-3 कैचेस छूटी है तो इसके वजह से भी मैं आगे बढ़ा. आई एम अ फूडी एंड आई लव इंडियन फूड. अगर मुझे बोले सबसे बड़ा आपका क्यूजीन क्या है, तो ऑल इंडियन फूड्स. मलबारी फूड इज माई फेवरेट, मुगलाई फूड इज माई फेवरेट, राजस्थानी फूड आई लव, गुजराती आई लव. सो एनीथिंग विच इज इंडियन बहुत मुझे पसंद है. या बहुत कोशिश करता हूँ दुबले होने की, लेकिन कोई चांस ही नहीं है. If you ask me 2015-16, yes, it's a difficult time not only for me but all the business people. Reason is, the whole Middle East economy is dependent on the oil. आज $150 से या $125 से $40 पे अगर ऑयल आ जाता है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो आता ही है. ग्लोबली ऑल्सो एवरीबडी इज गोइंग थ्रू नॉट ए वेरी गुड टाइम, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे आता है. तो डेफिनेटली आज, if you ask me, yes, 2016 is a difficult period, but 2014 was not, 2017 may not be. Now if you compare 2014 versus 17 versus the time I started the business, I believe we have the same opportunity. सबसे बड़ा sacrifice हुआ है फैमिली का. Luckily my wife was good, understanding. उन्होंने मुझे नैग नहीं किया कि रिजवान तुम क्या कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे हो. तो वो एक बड़ा अच्छा फैक्टर था कि, सो आई वुड से दैट गिविंग द टाइम टू द फैमिली वाज द क्रिटिसाइज आई वुड वांट टू टेक टू माई सेल्फ. Anybody wants to do business, like I earlier mentioned, that when you want to do business, just don't think that you have an idea, you want to start a business. That 90% may not work, 10% may work, and you don't want to fall in the strategy of 90% not work and 10% work.
You want to come at least in a level of at least 50% work and 50% not work, or 60% work and 40% not work. So in order to do that, whatever you want to do, whether you want to start a media agency, or you want to start a building material company, or you want to start an advertising company, or you want to start a television channel, you need to work in that particular field from the grassroots. You need to understand the ups and downs. Whether you want to start a restaurant, start working in the kitchen, then you start working as a waiter, then you go in the cashier, then you go as a purchaser, then you start a restaurant. You will be always successful because you will know exactly what is the recipe you require, what customer wants, उसको कौन सा टाइप का खाना पसंद है, क्या dishes पसंद है. The same way in the business also, in the simple language I have explained to you. This is very, very important that when you want to start a business, make sure you work for 1 or 2 years from the grassroots level, take all the experiences and then you start your business. Second thing, when you start the business, never look at how much money you're going to make. Always look at how much money you're going to lose, whether you can afford to do that. Many a times what we do is, हम एक प्रोजेक्ट डालते हैं कि चलो हम एक कपड़े की दुकान डालेंगे, एक बुटीक डालेंगे या एक रेस्टोरेंट बनाएंगे. रेस्टोरेंट बनाने में 1 मिलियन दिरहम हमारा खर्चा आ गया और हमारा कैलकुलेशन ये होता है यार 1 मिलियन दिरहम हम डाल रहे हैं, उसके अंदर हम सेल हमारी 200,000 दिरहम पर मंथ होगी, 50,000 दिरहम एक्सपेंसेस है, 50,000 दिरहम प्रॉफिट होगा. इस we look at every businessman or most of the businessmen when we start a business, we look at that option and we start that business. लेकिन अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या? अगर वो 200,000 बिजनेस धंधा नहीं दिया और 150,000 बिजनेस धंधा दिया या 100,000 दिरहम धंधा हुआ या कुछ नहीं चला, आर वी एबल टू टेक दैट लॉस? देन पुट दैट बिजनेस. जैसे मैंने बोला कि वो 30,000 दिरहम्स बच गए थे, मेरा 100,000 था, तो 30,000 100,000 डाल दिया मैंने. मुझे पता है कि 100,000 दिरहम्स में डाल के एक बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे 5,000 दिरहम की तो नौकरी कोई भी दे देगा. दैट वाज माय डाउन साइड. But if I put all my 1 million dirham which I have, and if I lose that 1 million dirham, then the loss is very big. So I need to have something backup. कि अगर loss हुआ, who will take care of that loss? Whenever I opened, I can't see anybody better than him because I live here every day. When I open the newspaper, I look at him as my inspiration. उससे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है बिकॉज एवरी डे शेख मोहम्मद कहीं ना कहीं होगा, उसके बारे में कुछ ना कुछ वो करता होगा नया, विच इज वॉट आई वुड वॉन्ट टू डू. आई बिलीव कि जो काम आप करते हो उसमें अगर आपको मज़ा आती है वो आपको और उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपको मोटिवेट करता है. जो भी आप काम करो, भले आप पतंग उड़ाओ तो पतंग उड़ाने में अगर आपने 2-3 पतंग काट दी सामने वाले की तो आप और पतंग उड़ाओगे. तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो मुझे मज़ा आती है और उसका रिजल्ट मुझे मिलता है. दैट मोटिवेट्स मी. मुझे सुबह सुबह रात को कितने भी लेट पार्टी में जाऊँगा, मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊँगा, वही 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक स्विमिंग करूँगा, 9:30 10 बजे तक मैं ऑफिस में आऊँगा ही. ये सबको पता है कि बॉस अगर बीमार भी होंगे तो पैनाडोल लेके ऑफिस में. I believe after we all love India, and I also love India very, very much. I've been grass-rooted with India. Whenever we have India-Pakistan matches also, or India playing a match, we always support India. Not only that, as far as the economy is concerned, I was a part of the delegation led by the Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, which they took us to India to see what opportunities are available in India. And what is important is that I noticed that India is growing at a very fast pace now. This is the time where one should really look at investing in India. We are also considering in investing in India because there is a lot of changes happening. The bureaucracy which we think was there in India is coming, is being changed. We are so happy and lucky that we have a leader like Narendra Modi who is able to drive India to a different level. Okay, people do say कि कुछ नहीं हुआ, but India, you have to understand, it's a huge country. It will take some time, but the progress is what is happening in India is unbelievable. And I believe that in the next 5 to 10 years, India will be the #1 country in the whole world. Today, what we are looking at as America, that will be India tomorrow.